Hello everyone, I am Anupam Kumar Singh from Systec Ratibad in Mechanical Engineering Department. A very warm welcome to all of you to this video lecture of mechanical vibration. So in this lecture we will discuss more about the damping. In the previous video lectures we have already discussed about the viscous damping and the Coulomb damping, and we have derived some relations for the viscous and the Coulomb damping. So we are familiar with the viscous damping and the Coulomb damping. So what is the viscous damping? So when the system is allowed to vibrate in a viscous medium, the damping is called as the viscous damping. Okay, as we know that the viscosity is the property of a fluid by virtue of which it offers resistance to the motion of one layer over the adjacent layer. So we know that this damping, this resistance produced is just because of the viscosity, and the arrangement we have seen that it is a kind of piston cylinder arrangement. Okay. Now if we will talk about the Coulomb damping, so as we know that it is also known as the dry friction damping or the friction damping, casually you can say. So Coulomb damping is, it occurs when one body is allowed to slide over the other. Suppose there is a two surfaces, this is moving over this surface. So when one body is allowed to slide over the other, the surface of one body offers some resistance to the movement of other body on it. So this resistance force is called the force of frictions, and thus force of friction arises only because of the relative movement between the two surfaces. So there are some amount of energy which is dissipated in overcoming this friction, as this surface is dry and rough. So it may be rough, it may be smooth, so as it is dry, so in this condition some amount of energy is dissipated, and because of that there is some damping phenomena, and that is known as the Coulomb damping. So now we will discuss in this lecture in more detail the structural damping and the slip or interfacial damping. So let's begin the structural damping. So a structural damping is just because of the inherent characteristics of the material. Okay. So and it is just because of the elastic property. तो अगर कोई भी हमारे पास मटेरियल है और अगर उसमें जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी है, तो उसमें स्ट्रक्चरल डैम्पिंग होगा. अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ये स्ट्रक्चरल डैम्पिंग होता क्यों है. तो किसी भी स्ट्रक्चर को अगर ये मान के चलिए कोई भी एक ये एक स्ट्रक्चर है, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर को अगर हम माइन्यूटली देखें, बहुत स्मॉल एलिमेंट अगर हम लें, तो इसमें बहुत सारे जो है मॉलिक्यूल्स होंगे और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण ये जो है आपस में बंधे हुए हैं. जैसे ही हम इसको लोड करते हैं, तो लोड करने के कारण होता ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है इंटर मॉलिक्यूलर, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शंस होता है, मीन्स इंटर मॉलिक्यूलर फ्रिक्शंस होते हैं. इन फ्रिक्शंस के कारण जो है एक तरह का जो है रेजिस्टेंस ऑफर होता है किसी भी स्ट्रक्चर में. तो हम किसी भी स्ट्रक्चर पे लोड लगा रहे हैं, लोड लगाने पे उसके जो इंटरमॉलिक्यूलर जो मीन्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में जो है फ्रिक्शंस प्रोड्यूस हो रहे हैं. फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होने के कारण जो है रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है, और ये रेजिस्टेंस ही एक तरह का क्या है, डैम्पिंग का काम करता है. अब इसमें होता ये है कि स्ट्रक्चरल डैम्पिंग की अगर हम बात करें, तो नॉर्मली स्ट्रक्चरल डैम्पिंग किसी भी अगर हम दूसरे डैम्पिंग से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, बट इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल. इसका मतलब ये है कि अगर हम मटेरियल चेंज करें तो अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो है वो भी जो है चेंज हो जाएगा. ओके. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर डिफरेंट मटेरियल की इलास्टिक प्रॉपर्टी डिफरेंट है, तो उस कंडीशन में उसकी स्ट्रक्चरल डैम्पिंग भी डिफरेंट होगी, बट इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है. तो अगर हम चाहें तो नॉर्मली हम इसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में इसको हम जो है नेग्लेक्ट करके चलते हैं. अगर मान के चलिए कि ये जो आपका मटेरियल है, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं इस छोटे से एलिमेंट में, हम इसको जो है एक तरह का साइक्लिक रिवर्सिबल लोड लगाएं. ओके. साइक्लिक रिवर्सिबल लोड का मतलब क्या है कि ये जो है जीरो से स्टार्ट हो और फिर एक अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुँचे, फिर ये जीरो पे आए, और उसके बाद ये फिर अपने मीन्स
फोर्स का नेचर चेंज हो जाए, मीन्स पहले अगर ये टेंसाइल था तो फिर कंप्रेसिव हो जाए और मैक्सिमम कंप्रेसिव पे जाए और फिर ये जीरो हो जाए। तो ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ साइक्लिक रिवर्सल लोडिंग, साइक्लिक रिवर्सल लोडिंग। तो अगर हम किसी भी स्ट्रक्चर को साइक्लिक रिवर्सल लोडिंग करते हैं तो उस कंडीशन में जो है अगर हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन जो है डायग्राम प्लॉट करें तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्लॉट करने पे हम देखेंगे कि ये आपका है एक्सिस स्ट्रेस का, ये है आपका एक्सिस स्ट्रेन का। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हमको ये दिखेगा कि इनिशियली जो है कुछ अमाउंट ऑफ लोड जो है लगता है और उस पर्टिकुलर लोड के लिए उस लोड तक के लिए मीन्स उस पर्टिकुलर लोड मीन्स अगर मैंने इतना अमाउंट ऑफ लोड लगाया या स्ट्रेस लगाया तो इस पर्टिकुलर लोड या स्ट्रेस के लिए अभी जो क्या कह सकते हैं डिफॉर्मेशन है या बोल सकते हैं चेंज इन जो लेंथ है वो अभी जीरो है। फिर इस अमाउंट के बाद हम जैसे ही लोड का वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे ही हमारा स्ट्रेन भी बढ़ता जाता है। तो हम देखेंगे कि अगर हमने लोड का अमाउंट बढ़ाया तो हमारा स्ट्रेन भी बढ़ा, तो न्यू पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। फिर हमने स्ट्रेस का अमाउंट बढ़ाया, फिर लोड बढ़ाया, हमने यहाँ पास आया। अब ये स्ट्रेस या लोड का अमाउंट बढ़ गया सर, आप देखेंगे पहले ये लोड का अमाउंट जीरो था, फिर धीरे 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 ये क्या हो रहा है मैक्सिमम हो रहा है और फिर धीरे 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 ये जीरो हो रहा है। अभी पॉजिटिव साइड है तो इसीलिए मैं ये पॉजिटिव साइड ले रहा हूँ। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा। तो ये मैक्सिमम लोड तक अपना पहुँच गया, ये मैक्सिमम लोड है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, हम लोड को रिवर्स करना चालू करेंगे। सो व्हेन वी विल रिवर्स द लोड मीन्स यहाँ से अगर हमारा देखें तो चेंज कर रहे हैं हम लोड का, मीन्स अब लोड जो है हट रहा है एक तरह से और धीरे धीरे जीरो होगा। तो जैसे ही लोड जीरो होगा उस कंडीशन में आपका जो स्ट्रेन है वो भी धीरे धीरे कम होगा। लेकिन जब लोड हमारा मीन्स स्ट्रेस हमारा पूरा जीरो हो जाएगा उस कंडीशन पे हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ जो है स्ट्रेन बच गया है ना। ये जो स्ट्रेन है ये जीरो नहीं हुआ। नॉर्मल अगर कंडीशन होती तो ये यहाँ से जाता और यही जीरो हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर अगर हम नीचे अगर फिर से वही कंडीशन करें तो ये एक तरह का जो है लूप बन जाएगा। ठीक है, ये एक तरह का क्या बन गया, लूप बन गया। और ये जो लूप है इसके अंदर का जो एरिया है ये क्या डिनोट कर रहा है, इसके अंदर का जो एरिया है ये डिनोट कर रहा है द काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द लॉस और द लॉस ऑफ द एनर्जी। तो ये क्या बता रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी। कितने साइकिल में, इन वन साइकिल, इन वन साइकिल। ओके, तो इतनी एनर्जी जो है इस एक साइकिल में जो है लोडिंग के एक साइकिल में जो है लॉस हुई। और इसीलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि ये एनर्जी लॉस हुई इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है अब एक तरह का क्या है, एक तरह से डैम्पिंग फिनो, क्योंकि रेजिस्टेंस हुआ तो एक तरह से ये डैम्पिंग फिनोमिना हुआ यहाँ पर। ये जो आपको लूप दिख रहा है इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप। इस लूप को हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, हिस्टेरिसिस लूप। ओके, और ये जो हिस्टेरिसिस लूप है ये डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट तरह का होगा। ओके, इसीलिए हम इस डैम्पिंग को मीन्स स्ट्रक्चरल डैम्पिंग को हिस्टेरिसिस डैम्पिंग भी बोलते हैं। सो स्ट्रक्चरल डैम्पिंग इज ऑल्सो नोन एज द हिस्टेरिसिस डैम्पिंग। एंड इस डैम्पिंग में होता क्या है कि इस डैम्पिंग में means all this mean is that more work is done on the system while straining it than what is recovered during the relaxation। मतलब और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगले साइकिल में देखो तो हो सकता है कि हमारा जो हिस्टेरिसिस लूप है और बड़ा होगा और जितना जो एनर्जी लॉस होता है पर साइकिल में वो जो एनर्जी लॉस है वो प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एम्पलीट्यूड ऑफ द इलास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड of the elastic material and therefore proportional to the amplitude of the vibrating body। And this proportionality holds good up to a certain stress amplitude after which it is found to increase much more rapidly with the stress amplitude। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल का जो है हिस्टेरिसिस लूप जो है वो अलग होगा। जैसे कास्ट आयरन हैज़ मोर हिस्टेरिसिस डैम्पिंग देन माइल्ड स्टील। तो ये जो है आपका स्ट्रक्चरल डैम्पिंग है। Now slip or interfacial damping। So as we know that the machine elements are connected through various types of joint। Okay, इसमें होता ये है कि
जो मशीन एलिमेंट के कुछ पार्ट्स हैं जो आपस में एक दूसरे के थ्रू जॉइंट हैं, या तो नट बोल्ट से हो सकते हैं या तो क्लैंप किए हो सकते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ ना कुछ डिसिपेशन होता है वाइब्रेशनल एनर्जी का। और ये कब होता है? जब इंटरफेस जो है मशीन एलिमेंट का और मशीन एलिमेंट के पार्ट का, जब वो कांटेक्ट में आते हैं। अब ये कांटेक्ट में किस कंडीशंस में आ सकते हैं? फ्लक्चुएटिंग लोड के कंडीशंस में आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जो है वाइब्रेशनल एनर्जी का लॉस होता है, जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं कि इसमें एक डैम्पिंग फिनोमिना हो रहा है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम ले रहे हैं। सो कंसीडर दैट देर इज ए cantilever beam, which is a very good example to understand. cantilever beam B, और इसके ऊपर जो है एक दूसरा बीम है, ठीक है, दैट इज द बीम A। और इसको हमने किया क्या है कि C क्लैंप कर दिया है, मतलब इसको हमने क्लैंपिंग की हुई है इस तरह से, ठीक है, इसको हमने क्लैंप कर दिया जगह जगह से। तो जब अगर मैं इसको देखूं तो ये कैसा दिखेगा? तो ये B है, ये आपका A है, कैंटिलीवर A एंड कैंटिलीवर बीम B। तो इसमें इस क्लैंप के कारण जो है प्रेशर जनरेट होगा। इस क्लैंप के कारण क्या जनरेट होगा? ये प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। नाउ अगर ये मान के चलिए, इसका मैं एक तरह से बोल सकते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, जिसमें इस क्लैंप को हटाऊंगा तो मुझे प्रेशर दिखेगा। अब अगर ये जो है मान के चलिए कि अपने इस प्लेन के अबाउट जो है अगर ये वाइब्रेशन कर रहा हो, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर ये ऊपर नीचे वाइब्रेशन कर रहा हो इस प्लेन के अबाउट, तो इसका जो पोजीशन है कुछ ऐसा दिख सकता है, या ये जो है कुछ इस तरह से दिख सकता है। ओके, मीन्स इट इज़ वाइब्रेटिंग, इट इज़ नो वाइब्रेटिंग, दिस कैंटिलीवर बीम इज वाइब्रेटिंग, ठीक है। तो आप थोड़ा सा सोच के देखें कि जब ये हमने मीन्स द टू आर प्रेस टुगेदर बाय ए नंबर ऑफ C clamps, so we remove the C clamps, so definitely C clamp will exert a pressure, एक प्रेशर एब्जर्ट करेगा बिटवीन टू कॉन्टैक्ट सरफेस, इन कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच में। अब होगा क्या? व्हेन द सिस्टम वाइब्रेट्स इन द वर्टिकल प्लेन, जब ये सिस्टम वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट करता है, जैसे आप देख सकते हैं ये वर्टिकल प्लेन में जो है वाइब्रेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन में वाइब्रेट करता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इन दो सरफेसेस के बीच में जो है स्लिप फिनोमिना होता है, जिसके कारण जो है आपका कुछ ना कुछ अमाउंट जो है पर साइकिल में एनर्जी का डिक्रीज होगा, मीन्स एनर्जी लॉस होगी। जिस एनर्जी लॉस होने के कारण जो है आपका क्या कह सकते हैं, डैम्पिंग फिनोमिना होगा। अब ये जो एनर्जी लॉस है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी जो लॉस है, जो कि क्यों आ रहा है? इन दोनों के बीच में स्लिप होने के कारण। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दोनों बॉडी क्या हो रहे हैं? वाइब्रेट हो रहे हैं वर्टिकल प्लेन में। ऐसा होने का जो कारण है वो क्या है? दैट इज द फ्रिक्शन। तो इसीलिए डिफरेंट जब हम अगर मटेरियल लेंगे तो उसके लिए जो स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ओके, वो मटेरियल के सरफेस की प्रॉपर्टी है। तो अगर हमारा सरफेस जो है अलग है, तो हमारा जो क्या कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो अलग होगा, और उस कंडीशन में जो अमाउंट ऑफ डैम्पिंग पर यूनिट साइकिल जो है वो भी डिफरेंट होगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने की, कि अगर हम सपोज ऐसा कंडीशन एज्यूम करें जिसमें कोई भी क्लैंप नहीं किया है, मीन्स सिंपल एक बीम था और उसके ऊपर दूसरा बीम रख दिया, व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन? सो इन दिस कंडीशन देयर विल बी नो काइंड ऑफ डैम्पिंग। तो अगर मान के चलिए कि मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं जिसमें ये जो है आपका है स्लिप डैम्पिंग, सो दिस इज द स्लिप डैम्पिंग, और ये है आपका प्रेशर। So in case if there is a no pressure, okay, if there is a zero pressure, in that condition there will be no slip damping, means there will be zero slip damping, ठीक है। जैसे जैसे हम जो है प्रेशर को बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे we will increase the pressure, the amount of the interfacial damping or the slip damping will increase।
लेकिन अगर हम बहुत हाई प्रेशर करते हैं, मीन्स एकदम बहुत मैक्सिमम प्रेशर की बात करते हैं, इवन इन दैट कंडीशन द स्लिप डैम्पिंग इज जीरो. ओके, वाई दिस इज जीरो? बिकॉज अगर हमने इस दो मटेरियल को इतनी टाइटली क्लैम्प कर दिया है, मीन्स इतना ज़्यादा प्रेशर है कि ये वाइब्रेट तो हो रहे हैं लेकिन आपस में ये स्लिप नहीं हो सकते. तो अगर ये स्लिप नहीं हो सकते तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका स्लिप डैम्पिंग भी जीरो होगा. तो इनिशियल कंडीशन में क्या था कि कोई भी प्रेशर नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है तो भी स्लिप नहीं होगा. उस कंडीशन में स्लिप डैम्पिंग जीरो है. और अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस कंडीशन में भी स्लिप नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत टाइटली क्लैम्प है. तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, आपका स्लिप डैम्पिंग जीरो होगा. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये डायग्राम. ठीक है, ये इस तरह से दिखाई देगा आपको डायग्राम. तो आप क्या देख सकते हैं कि जैसे जैसे अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे स्लिप डैम्पिंग बढ़ रहा है. फिर ये आपने एक कह सकते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर की तरफ आता है. तो मैं इसको बोल सकता हूँ दिस इज द क्रिटिकल प्रेशर. एक प्रेशर आएगा जिस पे स्लिप डैम्पिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, मीन्स मैक्सिमम स्लिप डैम्पिंग होगा. दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. और उसके बाद और अगर मैं प्रेशर की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो स्लिप डैम्पिंग की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी. नाउ दिस एम्पलीट्यूड, ये जो आपको एम्पलीट्यूड दिख रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, स्लिप एम्पलीट्यूड जो दिख रहा है, स्लिप डैम्पिंग एम्पलीट्यूड जो दिख रहा है, नाउ इट इज़ different for different material. Okay, and different for different amplitude of vibration. So larger the energy dissipation, larger is the effective damping in the system. जितना ज़्यादा आपका जो है एनर्जी डिसिपेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका जो है ये इफेक्टिव डैम्पिंग सिस्टम में होगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्लिप डैम्पिंग और द इंटरफेशियल डैम्पिंग. Thank you very much for listening.